ओके, नाउ अब हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे क्वेश्चन में एंड वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. I have written some important points in the bullet form so that we have enough space here. So first entry will be the money which has been received by the company has to be deposited in the bank. So the entry will be bank account debited to share application account on how many shares? 25,000 because ये issued amount है and into 30 क्यों? एप्लीकेशन का अमाउंट था. ओके, सो द अमाउंट विल बी 25 into 3. दिस विल बी 7,50,000 and the next entry will be, now this amount has to be transferred in the share capital account. So share application account debited to share capital account, the entire 7,50,000. क्लियर? ये एंट्रीज एज इट इज़ होंगी जैसे हमने डिस्कस किया था. अब अलॉटमेंट की एंट्रीज में कुछ नया क्या है कि अब कंपनी प्रीमियम पे शेयर्स इशू कर रही है. ओके, सो हमें ये पता है कि जैसे ही अलॉटमेंट लेटर्स डिस्पैच होते हैं तो अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाता है. सो नाउ कंपनी नोज कि अलॉटमेंट में दे आर कलेक्टिंग द प्रीमियम अमाउंट ऑल्सो. And in this question they have given allotment money is 45 including, now this is important, okay, including premium means premium की amount कितनी थी? 20 per share. So ये 45 में से अगर premium की value is ₹20, so allotment value will be 25. clear? सो अब हमें पता चल गया कि अलॉटमेंट की वैल्यू 25 है, प्रीमियम की 20 है. तो जैसे ही अलॉटमेंट मनी ड्यू होता है इट हैज़ टू बी ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल अकाउंट. तो अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया तो साथ में प्रीमियम अमाउंट भी ड्यू होगा एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू अ सेपरेट अकाउंट विच इज़ ओपन बाय द नेम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. सो द फर्स्ट एंट्री विल बी share allotment account debited to capital account and to securities प्रीमियम अकाउंट. क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट का जो अमाउंट है वो हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है और प्रीमियम का जो अमाउंट है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है. सो अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे कलेक्ट करेंगे? ऑन 25,000 शेयर्स. अब हमें पता चल गया है कि अलॉटमेंट का वैल्यू इज़ 25. सो दिस विल बी 6,25,000. And securities premium is again collected on 25,000 shares on how much value? 20. So this will be 5 lakhs. इसको हम ऐड अप कर लेंगे. So this will be 11,25,000. Clear? अब सेकेंड एंट्री क्या होगी? अब हमें अलॉटमेंट मनी और प्रीमियम मनी दोनों को ही बैंक में डिपॉजिट करना है. सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विच विल बी टोटल 11,25,000. हम पूरा अमाउंट क्यों ट्रांसफ़र करेंगे? क्योंकि हमें अलॉटमेंट मनी के साथ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट भी
मिला है। अंडरस्टूड। अब अगर हम यहीं पे देखें तो थर्ड एंट्री फर्स्ट कॉल पे है। नाउ फर्स्ट कॉल प्रीमियम ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, तो फर्स्ट कॉल और जो सेकंड कॉल की एंट्रीज होंगी वो सिंपल एंट्रीज होंगी जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके। सो as soon as the amount on first call becomes due, the entry will be share first call account debited to share capital account. The amount will be, how many shares were issued? 25,000 and first call का amount था 20,000. 25,000 into 20, this will give us 5 lakhs. And then again it will be transferred to bank account. So the entry will be bank account debited to share first call account. Okay. Fourth will be the second and final call entry. जब second और final call entry due होती है तो it will be transferred to the share capital. तो share second and final call account debited to share capital account with how much? 25,000 shares. And what was the price for second call? 25 per share. So 25,000 into 25. This will again give us 6,25,000. Clear? Fifth entry will be, now अब हमें, sorry, this is the first entry. Second, you will transfer this amount in the bank account debited to this will be 6,25,000. Now what is the extra information given in the question is that share issue expenses were written off against securities premium. अब share issue से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस थे, तो ये एक्सपेंसेस पहले हम बैंक से इनके लिए मीट करने के लिए पैसा हम विड्रॉ करेंगे. सो द एंट्री विल बी share issue expenses account debited to bank account, that is 40,000, and then we will write it off again securities premium account. written off का मतलब हमने पहले ही डिस्कस किया, मीन्स टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ समथिंग. और जिस अकाउंट के अगेंस्ट ये राइट ऑफ हो रहा है वो अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो रिटर्न ऑफ वाली एंट्री में डेबिट हो जाएगा. सो इन दिस केस सिक्योरिटीज प्रीमियम इज बीइंग क्रेडिटेड, बट अगर हम किसी एक्सपेंस को इसके अगेंस्ट राइट ऑफ कर रहे हैं तो ये हमेशा डेबिट होगा. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड to share issue expenses account. That is 40,000. Clear? So these will be the journal entries relating to this question. Now अब अगर हमें बैलेंस शीट बनानी है, सो वी ऑल नो दैट बैलेंस शीट में अगर बैंक की एंट्रीज आ रही हैं, सो फर्स्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द बैलेंस ऑफ द बैंक, बिकॉज ये जो बैलेंस होगा दिस बैलेंस विल बी अगेन ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड. ओके,
this is the debit side and this is the credit side. Okay, so what will be the entry, what are the entries related to bank? First is bank account debited to share application account. How much? 7,50,000. Next entry is bank account debited to share allotment account. It is 11,25,000. Next is bank account debited to share first call account to share. How much? 5 lakhs. Next is bank account debited to second and final call to share. Final call account is 6,25,000. And here, since you have made payment first through bank, so the bank is on the credit side, so entry will be coming by share issue. Expenses account is 40,000. Now you have to balance it. You will add up this amount. It will come to 30 lakhs. ये आप अपने कैलकुलेटर से कर सकते हैं, जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं अलॉन्ग साइड साइमल्टेनियसली आप भी अपने कैलसी से कैलकुलेशंस कर सकते हैं. ओके, तो द रिमेनिंग बैलेंस विल बी बाय बैलेंस CD. This balance will be transferred to the balance sheet, that is 29,60,000. तो एक बैलेंस तो हमें पता चल गया, that is for the cash at bank which will go on the asset side of the balance sheet. Okay, so now we can make balance sheet. Okay, so in this question first authorized capital was given, that was, so you will write authorized capital. I think so it was 60,000 shares of rupees 100 each, so this was 60 lakhs. This amount was also given in the question. We will close it. Again, issued capital was issued, subscribed and paid up capital was same. Issued, subscribed and paid up capital. I think so it was 25,000 shares of rupees 100 each, so this was, so this is 25 lakhs. यहाँ पे हम 100 रुपीज़ शेयर क्यों लिख रहे हैं और 120 क्यों नहीं लिख रहे हैं जो कि प्रीमियम अमाउंट थी? बिकॉज जो प्रीमियम का अमाउंट है वो अमाउंट सेपरेटली सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में हम नोट कर रहे हैं एंड दैट अमाउंट विल बी सेपरेटली शोन अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. इसलिए हम यहाँ पे 25,000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच ही लिख रहे हैं. ओके, नाउ कैश एट बैंक. कैश एट बैंक का बैलेंस हमें पता चल गया 29,60,000. ओके, नाउ दिस विल कम अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड surplus. Securities
premium. Securities premium. Now, what is the final amount which will come under securities premium? अगर हम securities premium का account बनाते हैं to know the balance कि final कितना बैलेंस हमें बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है. ओके, जैसे हमने बैंक अकाउंट बनाया वैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी बनाएंगे. सो द एंट्रीज रिलेटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहाँ पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री थी दैट वाज फर्स्ट, ये एंट्री थी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट दैट इज 40,000. ओके, और प्रीवियसली हमने जो जर्नल एंट्री बनाई थी सबसे पहले जो कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की थी, उसमें क्या हम लिखेंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम क्रेडिट हो रहा था. ओके, सो द एंट्री सिक्योरिटीज़ प्रीमियम वाज क्रेडिट, सो द एंट्री विल कम ऑन द क्रेडिट साइड बाय शेयर allotment account. That was how much the value of premium we will write, 5 lakhs. ओके, जो प्रीमियम हमने अलॉटमेंट के दौरान कैलकुलेट किया था दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द क्रेडिट साइड एंड द प्रीमियम अमाउंट अमाउंटिंग टू रुपीज शेयर इशू विल बी डेबिटेड बाय 40,000. सो नाउ हाउ मच इज द बैलेंस? आउट ऑफ 5 lakh we will deduct 40,000, so the balance will be 4,60,000. Now this 4,60,000 will be transferred here in under the heading reserves and surplus in securities premium, that is 4,60,000. Now you can balance it. So the balance will be 29,60,000. क्लियर? तो आई सपोज ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर प्रीमियम का कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है. फर्स्ट वी विल मेंशन ऑल दी रिकॉर्ड ऑल दी जर्नल एंट्रीज, देन स्पेसिफिक अकाउंट्स बनाएंगे बिकॉज बैंक मेंशन कर रहे हैं तो बैंक का बैलेंस हमें जानना ज़रूरी है. उसके बाद अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से रिलेटेड और एंट्रीज़ हैं लाइक इस केस में तो आपको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट कैलकुलेट करके यू हैव टू ट्रांसफर इट हियर ऑन द लायबिलिटी साइड एंड फाइनली आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं. इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.